आज आपण स्टार्ट करणार आहोत 12th स्टँडर्डचा केमिस्ट्रीचा चॅप्टर 1 जो आहे सॉलिड स्टेट. As the name of chapter is solid state, we are going to learn about the solids in this chapter. First we will see types of the solids. Which are the types of solids? There are two types of solids, which are that crystalline solids and amorphous solids. We should know the difference between these two types. We will understand this by taking examples. In crystalline solid, we will take the example of NaCl, and in amorphous solid, we will take the example of glass, otherwise rubber. You have to consider in crystalline solid, just imagine for the NaCl and amorphous glass. Then first difference is that arrangement of the atoms. If we see the arrangement of atoms in the crystalline solid, what we can see, it is arranged very finely in the systematic pattern way. Pattern you have learned in the maths also. Pattern, it is the particular shapes arranged in the particular manner. एक regular manner में उनको arrange किया जाता है. Like that only here particles are arranged in the some particular pattern that you can see the diagram in left side. That is the regular arrangement of constituent particles. And in amorphous solids, if we take the example of glass, in that whatever the atoms are present in that, they are not in the regular arrangement, they are randomly arranged in the solid. That you can see diagram in the right side. Particles are not perfectly arranged there, they are randomly arranged. This arrangement, irregular arrangement, we can see in the amorphous solid. This is the first difference. Next one is that crystal solids have sharp melting point. If we want to take the melting point of crystal solids, we can get a particular melting point of that solid. But if you want to take the melting point of amorphous solid, we cannot get the sharp melting point, perfect melting point we cannot get in the amorphous solids. This is the second difference. Then third one is that crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropics. What is this anisotropic and isotropics? That we will see in the next slide. For the now, you just remember these two difference, and crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic, and their arrangement there, what are the particles arrangement there, that diagrams you just learn here. अनआइसोट्रोप एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा लर्न करना है. पहले से हमें पता है सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे सॉलिड्स आर कैरी द इलेक्ट्रिक करंट. अदरवाइज हम बोलते हैं सॉलिड को डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ऐसे ही यहाँ पे हमें कंसीडर करना है सॉलिड की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में. अगर ये तीन चीज़ें किसी सॉलिड में डिफरेंट आ रही है इनकी वैल्यूज़, तो उनको बोलेंगे हम अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. ऐसे क्रिस्टल सॉलिड्स जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेंगी, इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेंगी अगर हम इनका वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन से उस सॉलिड में लेंगे, तो उसको बोलेंगे अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर ये सेम वैल्यूज सेम रहेंगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इन तीनों की वैल्यू अगर सेम रहेगी, किसी भी डायरेक्शन से हमने इनका वैल्यू लिया सॉलिड में, तो वो रहते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड्स. ये रहती है प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द एमरफस सॉलिड. अब हम देखेंगे आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस कंपाउंड्स क्या होते हैं. यहाँ पे आपको दो क्राइटेरिया याद में रखना है. एक है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एंड उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो आइसोमॉर्फस है कि पॉलीमॉर्फस है. किस पे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे.
अगर दिया हुआ कंपाउंड आइसोमॉर्फस है तो उसमें क्या रहेगा, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें क्रिस्टल का जो भी स्ट्रक्चर है क्यूबिक स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसका दोनों भी कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा क्यूबिक ही होगा, बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा, उनको बोलेंगे हम आइसोमॉर्फस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो स्ट्रक्चर क्या है, ये दो कंपाउंड क्या है, आइसोमॉर्फस है। क्यों? क्योंकि इनका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, नहीं है। एक सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है एंड एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, बट सेम क्या है, इनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस क्या होगा, इसके अपोजिट, उनका केमिकल फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा एंड उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट रहेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का तरीका जो है वो डिफरेंट रहेगा, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का डेफिनेशन देखेंगे, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्रिस्टल फॉर्म जो है वो डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहेगा एंड उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने लिया तो उसके दो टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं, कैल्साइट एंड एरेगोनाइट। कैल्साइट एंड एर्गोनाइट ये दो फॉर्म है जो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। अगर हम इसका और एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो कौन सा एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, सिलिकॉन का SiO2, इसका केमिकल फार्मूला है SiO2। और अगर हम इनके क्रिस्टल्स देखेंगे तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक ही सेम ही फार्मूला है, बट इसके जो क्रिस्टल्स है वो 3 टाइप्स के हैं। वो कौन कौन से हैं, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबैलाइट। ये 3 क्रिस्टल फॉर्म्स है, किसके, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स है सिलिका के। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इसके क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं 3 डिफरेंट फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने पढ़े, उसके ऊपर हम अभी कुछ PYQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है आपको बताना है। ऑप्शन है डायमंड, मैग्नीशियम, ग्लास एंड कैम्फर, तो उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ग्लास इज द एमरफस सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड कौन सा नहीं है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से ये पूछा है आपको। ऑप्शंस आर टार, कैम्फर, बटर एंड रबर। कैम्फर इज नॉट द एमरफस सॉलिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, which of the following statement is not true about the isomorphism? Options are, isomorphism substances have same crystal structure. This statement is the true statement. हमें find out करना है not true statement. Next option check करेंगे, isomorphism occurs in elements is called allotropy. This is not true about the isomorphism. Why? Because allotropes are showing the same structure of the crystal, but they have the whatever elements in that they are also same, but in isomorphism only crystal structure is the same, but that whatever the elements included in that are different. That's why option B is not true about the isomorphism. Then our answer is option B only. Question number 4, which of the following is not an example of polymorphism exhibited by the silica?
हमने आपके डू यू नो में पढ़ा था, आपके टेक्स्ट बुक के सिलिका के कितने पॉलीमॉर्फिज्म है। जो सिलिका दिखाता है अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट, ये 3 पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं सिलिका के। बट कौन सा नहीं होता है, वो होता है फ्लोरेंस, ऑप्शन डी। Question number 5. Which of the following statement is not true about polymorphism? Option A. Fullerene is a polymorphic form of carbon. This is true statement. Then second check करेंगे. Single substance that exists in 2 or more forms is said to be polymorphs. This is also the true statement because one only substance, one only molecular formula shows the different crystal forms, structural forms. Then C option check करेंगे. NAF and MgO are polymorphous compounds. So this is not true statement because these are the isomorphs. That's why our answer is option C. D option check करेंगे. Polymorphism occurs in the elements is called the allotropes. That is also true statement. This is not the isomorphs. The allotropes we can say it is the polymorphs. Question number 6. Which from the following is not an example of amorphous solid? Options are glass, plastic, rubber and diamond. From this option D, it is not the amorphous solid. That is diamond. Question number 7. Which of the following statement is not true about the polymorphism? The existence of substances in more than one crystalline form. This is true statement. Polymorphism occurs in elements is called allotropes. That is also true. Polymorphic forms of a substance are formed under the different condition. This is also true statement. The crystal shape of polymorphic substance is identical to each other. This is not the true statement. Polymorphic substances जो crystal दिखाते हैं, that only the different form. That's why this is not the true statement about polymorphism. Option D. Question number 8. Which from the following statement is not true regarding crystalline solid? Options are there is a regular and periodicity in arrangement of constituent particles. This is the true statement. Then next is it is isotropic. This is not the true statement because crystalline solids are anisotropic. Then our answer is option B. It is melt at definite temperature. This is also the true. It has different magnitudes of refractive index in the every direction. This is also the true statement. Question number 9. Which of the following is not an example of polymorphic form of carbon? Options are diamond, aragonite, graphite and fullerenes. Then from this option B is not the polymorphic form of carbon. Question number 10. Which from the following solid exhibits isotropic properties? Options are diamond, graphite, sodium, metallic glass. From that option D is the correct answer. हमने क्लासिफिकेशन देखा है सॉलिड्स का. सॉलिड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड. इसमें जो फर्स्ट टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो हम पहले देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, हाउ वी कैन क्लासिफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करना है तो हमें 2 फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा. वो कौन से रहेंगे? जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बारे में एंड उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में. इनको अगर हम कंसीडर करेंगे तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के. वो कौन से? आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स. इन सबको पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड whatever the particles present in that, उनके अरेंजमेंट के ऊपर. तो हम फर्स्ट पॉइंट उनके लिए स्टडी करेंगे
सब सॉलिड्स के लिए जो रहेगा पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल, वो किस टाइप के पार्टिकल से बने हैं, जो सॉलिड है वो किस टाइप के पार्टिकल से बने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहले देखेंगे आयोनिक सॉलिड, उसके नाम में ही है आयोनिक मतलब क्या, वो किसी टाइप के आयंस के पार्टिकल से बने होंगे, वो रहते हैं आयोनिक सॉलिड्स। हमें पता है आयंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम उनको बोलते हैं कैटायंस एंड एनायंस। तो जो आयोनिक सॉलिड्स है वो कैटायन एंड एनायंस के टाइप के पार्टिकल से बनते हैं। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड कौन से पार्टिकल से बनते हैं, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम से। कोवैलेंट बॉन्ड रहता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में। सेकेंड पॉइंट हम कंपेयर करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जो भी ये पार्टिकल से बने हैं जैसे कैटायंस एनायंस है, अदरवाइज कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स है, इनमें कौन सा फोर्स रहेगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। आयोनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स रहेगा, आयंस के इन बिटवीन द आयंस फोर्स है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर यही फोर्स हम कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड के बारे में देखेंगे तो उनमें कौन सा फोर्स रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फोर्स रहेगा, जो भी वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे पार्टिकल्स उसका फोर्स रहेगा इन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब थर्ड पॉइंट कंपेयर करेंगे हम प्रॉपर्टीज, जो है हार्डनेस। अगर हम आयोनिक सॉलिड के हार्डनेस देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली कम हार्ड होते हैं, जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं उनसे कम हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, जैसे चॉक के जैसे हार्ड तो है बट हम उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, कोल है अनदर एग्जांपल। तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आयोनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली वेरी हार्ड, फॉर एग्जांपल डायमंड एंड सिलिका, ये इजीली ब्रेक नहीं होते। देन फोर्थ पॉइंट स्टडी करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। ये हार्ड एंड ब्रिटल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, हाई होता है। हाई मतलब कितना, इसका रेंज होता है 600 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज है आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट का। अगर हम देखेंगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट तो ये कितना होता है 1200 टू 4000 तक, 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लर्न करेंगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, बट कब, इन सॉलिड स्टेट। अगर इनको हमने लिक्विड स्टेट में लिया, इनका सोल्यूशन बनाया तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल बन जाएंगे। हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये जल्दी से इनको जल्दी कंडक्ट कर सकते हैं। कब, बट इनका लिक्विड हमने अगर बनाया तो हमने इनका सॉल्यूशन बनाया तब, और ये अदरवाइज ये सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर्स होते हैं। कौन, आयोनिक सॉलिड्स। अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स की तो ये पुअर कंडक्टर्स है, बट इनके भी एक्सेप्शन केसेस है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का एक गुड कंडक्टर है एंड ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये दो एक्सेप्शन केसेस है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में, अदरवाइज ये सारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे NaCl एंड KaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में आपको एग्जाम्पल लिखना है डायमंड एंड सिलिका। ये टू टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गए, आयोनिक सॉलिड्स एंड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। इनके हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल्स, इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस, देन हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट देखा इनका, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एग्जाम्पल के बारे में। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल्स और यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे हम। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो सिंगल एटम से अदरवाइज मोर देन
1 एटम से बनता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, वो एक एटम से बनता है, उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड। अदरवाइज इसको क्या बोल सकते हैं, मोर देन 1 एटम से बनता है तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें मोनो एटॉमिक में एग्जाम्पल रहेगा इनर्ट गैसेस का, वो आप कंसिडर कर सकते हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑफ मोनो एटॉमिक टाइप। एंड पॉलीएटॉमिक में एग्जाम्पल लेंगे आइस एंड बेंजोइक एसिड का। मेटेलिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम दिया है आपको। पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स है वो एम्बेडेड रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड इन द नेगेटिवली चार्ज सी। यहाँ पे दिया है आपको मेटेलिक आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और उसमें मेटेलिक आयंस एम्बेडेड रहेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है मेटेलिक सॉलिड्स में, और उनके जो पार्टिकल्स और इंडिविजुअल एटम्स है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट बात करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो रहते हैं वंडरवाल फोर्सेस, उसको ही हम लंदन फोर्स बोलते हैं, अदरवाइज डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन फोर्स। वाटर में देखेंगे तो कौन सा फोर्स होता है, हाइड्रोजन फोर्स। एंड ये डाइपोल फोर्स और लंदन फोर्स क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट गेट प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ द partially positive and partially negative charge get produced on the molecules। मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो उनके मॉलिक्यूल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अकर होता है, बट ये थोड़े ही टाइम के लिए होता है। तो ये एग्जिस्ट करता है, इनका एग्जिस्टेंस टाइम जो है वो बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए, और ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इसीलिए ये इनको हम बोलते हैं लंदन फोर्स इनमें रहता है। अदरवाइज डाइपोल फोर्स भी इसको बोलते हैं हम। अगर इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस इन मेटेलिक सॉलिड देखेंगे तो ये कैसा होगा, इनमें मेटेलिक बॉन्ड रहेगा। वो कैसे बनेगा मेटेलिक बॉन्ड, कैटायन एंड एनायन से। कैटायन जो है वो मेटल के आयन कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अट्रैक्शन रहेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स, वो कौन सा फोर्स बनाएंगे, मेटेलिक फोर्स, मेटेलिक बॉन्डिंग बनाएंगे। फिर देखेंगे इनके हार्डनेस के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एंड मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो सॉफ्ट से हार्ड तक वेरी करता है। उनमें सम मेटल्स आर सॉफ्ट ऑल्सो लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, these are the metals but they are soft, that's why their range get vary for the hardness। अगर हम देखेंगे कॉपर एंड कॉपर गोल्ड देखेंगे तो ये मेटेलिक सॉलिड्स है बट ये बहुत हार्ड है, तो इनका रेंज जो है हार्डनेस का वो वेरी करता है फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। फिर फोर्थ पॉइंट रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वेरी करता है -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक। अगर मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका बहुत वाइड रेंज है, वो वेरी करता है -39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस तक। फिर देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर सॉलिड की, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो वो बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल आइस एंड बेंजोइक एसिड है, आपको यहाँ पे आइस दिया है बट उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा दिया है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट हमने तो पढ़ा था वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे आइस को पुअर कंडक्टर क्यों बोला है, क्योंकि अगर आइस बनता है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, जो वो वेरी टाइटली दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में वो टाइटली पैक होते हैं जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसकी वजह से वो पुअर कंडक्टिविटी दिखाते हैं टूवर्ड्स द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम देखेंगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स, then they are good conductors of heat and electricity, they can easily carry the heat and electricity। मेटेलिक सॉलिड्स की गुड कंडक्टिविटी होती है
ऑफ थर्मल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। एग्जाम्पल्स हमने लर्न किए हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जाम्पल आइस, बेंजोइक एसिड और इनर्ट गैसेस, एंड मेटेलिक सॉलिड में सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, ये एग्जाम्पल्स रहेंगे। ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टल सॉलिड्स के बारे में। हमने अभी पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अब हम सॉल्व करेंगे इस पॉइंट पे कुछ PYQs। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्डिंग इन द मैग्नीशियम इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शंस आर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, electrovalent bond and metallic bond. From that, option D is the correct answer. Question number 2, which among the following solid is a non-polar solid? Options are hydrogen chloride, sulfur dioxide, water and carbon dioxide. From that, option D is the correct answer. It is the non-polar solid, carbon dioxide. Question number 3, dry ice is an example of ionic solid, covalent solid, metallic solid or molecular solid. Dry ice is an example of molecular solid. Option D is the correct answer. Question number 4, which of the following is an example of ionic solid? Options are silica, ice, sodium metal and calcium fluoride. From that, option D is the correct answer, calcium fluoride. Question number 5, which among the following statement is not true about covalent network solid? ऐसे जो भी क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन टाइप, आपको इसमें सॉल्व करने में कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है? अगर आपको इसके परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पर्टिकुलर आपको पता नहीं है तब आप इसमें डिफ़िकल्टी फील कर सकते हो। इसीलिए ये जो डिफरेंस दिया है सब सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये आपको लर्न करना है, उनके एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करने हैं, तभी आप इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का परफेक्ट आंसर पता है तो इस स्टेटमेंट्स में से कौन सा नॉट ट्रू है ये आपको इमीडिएटली फाइंड आउट हो जाएगा। ऑप्शंस चेक करेंगे। These are soft in nature. This is only not true about the covalent network solid because all covalent network solids are very hard. Then our answer is option A. बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कैसा होता है। The atoms in this solid are linked by covalent bond. Then next is covalent solid have the high melting point. And the option is, in this solid the constituent particles are atoms. These all are the true about covalent network solid. Question number 6, which of the following statement is not true about ionic solid? Options are, pure ionic solid is good conductor of electricity in solid state. This is only not true about the ionic solid because in the solid state ionic solids are not good conductors. That's why our answer is option A only. Other options we will see that are true about the ionic solids. The constituent particles of ionic solids are cations and anions. In these constituent particles are held together by electrostatic force of attraction. Ionic solids are hard and brittle. These all three options are true about the ionic solid. Only A is not true. Question number 7, what type of bonds are present in molecular crystals? In that, options are metallic bond, ionic bond, covalent bond, various intermolecular forces of attraction. From that, option D is correct answer for this question, various intermolecular forces of attraction. Question number 8, what type of chemical bonding is present in quartz? Options are covalent bonding, electrostatic force of attraction, van der Waals forces of attraction and metallic bonding. From that, option A is the correct answer, covalent bond. Question number 9, which of the following is an example of covalent network solid? Options are magnesium metal, benzoic acid, सोडियम क्लोराइड एंड बोरॉन नाइट्रेट। इसमें ऑप्शंस चेक करेंगे। मैग्नीशियम मेटल कौन सा सॉलिड होता है? ये होता है मेटेलिक।
बेंजोइक एसिड होता है मॉलिक्यूलर, एंड सोडियम क्लोराइड होता है आयोनिक। देन हमें पूछा है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोरॉन नाइट्राइड। Question number 10. Which among the following statement is not true about molecular solid? Options are the molecules are held together by various intermolecular forces of attraction. This is the true. Option B. It has low melting point. This is also true about the molecular solid. Option C. It is good conductor of heat and electricity. This is only not true statement about the molecular solid. ऑप्शन डी चेक करेंगे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स और unbonded single atoms of the same substance. This is also true statement about the molecular solid. Only C option is not true. Question number 11. Which among the following is an example of molecular solid? Options check करेंगे, सिलिका डाइऑक्साइड, it is the network type of solid. Then option B, it is only the benzoic acid is only the molecular solid. मैंने आपको एग्जाम्पल में इसका molecular formula भी दिया था. Then option C चेक करेंगे, SiC, it is also the network type of solid. And option D is the ionic type of solid. Question number 12. Which from the following is not an example of covalent network solid? Options are silica, boron nitride, silicon carbide and calcium fluoride. From that option D is the correct option because it is the ionic solid. और हमें पूछा है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड कौन सा नहीं है, देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 13. Which of the following statement is not true about metallic solid? Options are it is crystalline solid. This is the true statement. The constituent particles are held together by covalent bond. This is only not true about the metallic solid because that positively charged particles are embedded in the sea of electron that we have seen the structure of metallic solid. Then option B is the correct answer. It is malleable and ductile. This is also true. It is good conductor of heat and electricity. Other all options are true about the metallic solid. Only option B is not true. Question number 14. What type of following solids are dry ice? Options are ionic solid, covalent network solid, molecular solid और metallic solid. ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक जो भी सॉलिड का टाइप है उसके ऑप्शंस जो उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको आपको लर्न करना है, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. यहाँ पे आपको पूछा है ड्राई आइस, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से टाइप के सॉलिड का, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज सिलिका? ऑप्शंस आर आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर and metallic. From that option B is the correct answer. Silica is the covalent solid, covalent network solid.